Hello dear students, welcome you all to our biology virtual class. Today we are going to discuss a new chapter. It is the chapter number 9. It is heredity and evolution. As per our new NCERT syllabus, there is only heredity which we have to learn. Okay, so the chapter name is heredity and evolution, within which we have only discussed heredity portion in our NCERT book as per our new syllabus. So before we are going to discuss the chapter, we have to know some terminology, some terms which are frequently used during the discussion of our chapters. So let's start with the first terminology which comes in our mind when we will study the chapters heredity and evolution, that is the genetics. Genetics. What is genetics? It's a new term in our syllabus. Genetics, it's a branch of life science, or it's a branch of biology that deals with the study of heredity. It's a branch of biology that deals with the study of heredity and called the genetics. Genetics term कहाँ से आया है? जीन से आया है. जीन. वो जीन कहाँ पे होता है? जनरली डीएनए के अंदर होता है. अब डीएनए कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है. ठीक है. सो हम लोग एक पर्टिकुलर एक लाइफ साइंस या बायोलॉजी का एक ब्रांच है जहां पे हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. वो पर्टिकुलर ब्रांच को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं. ठीक है. ग्रीगोर जोहान मेंडल इज द फादर ऑफ, नाम याद रखना है, ग्रीगोर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड डब्ल्यू Batson is the father of modern genetics. Okay, so now we have to know how many types of genetics are there. Okay, basically different types of genetics are there. First one is the transmission genetics. First one is the transmission genetics. What is transmission genetics? It deals with the transmission of genes from one generation to next generation. So transmission मतलब हम लोग समझते हैं कि कोई एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन. So within the transmission genetics we have to deal with the transmission of genes from one generation to next generation. ठीक है. कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिसके लिए कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जीन क्या होता है? पेरेंट्स से ट्रांसमिट होता है. ट्रांसमिशन जेनेटिक्स के अंदर हम लोग को पढ़ना पड़ता है जीन्स व्हिच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. नेक्स्ट टाइप इज द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. सो इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ जीन्स एट ए मॉलिक्यूलर लेवल. तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्या हो गया? चीज सेम ही है, जीन का ही ट्रांसफर हो रहा है, पर उस जीन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं ना, तब उसका नाम हो जाता है molecular genetics. And the third one is the population genetics. What is population genetics? It deals with the application of Mendel's laws and other principles of genetics to population of organism. तो मेंडल ने जो लॉ प्रपोज करके गया था, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उस मेंडल्स के लॉ के साथ और भी कुछ अदर जेनेटिकल प्रिंसिपल जो कोई पॉपुलेशन के अंदर जितना ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर स्टडी करने के लिए हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स स्टडी करते हैं. ठीक है. सो दीज आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स. नाउ वी हैव टू नो सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. ठीक है. ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों ये चैप्टर्स के लिए. जब चैप्टर्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तब ये टर्म बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा. तो उसी टाइम में अगर हम लोगों को उसका मीनिंग पता नहीं होगा तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा टू अंडरस्टैंड the basic things of that chapter. So before we discuss in details, we have to know each and individual terminology, each and individual term. ठीक है. उस टर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है.
So let's start with our first term, that is inheritance. ये टर्म हम लोग बहुत यूज करते हैं, इनहेरिटेंस, इनहेरिट करना. So what is inheritance? Inheritance means the transmission of characters from parents to progeny. From parents to progeny. पेरेंट्स से लेकर प्रोजेनी तक जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है उसी को ही कहते हैं हम लोग इनहेरिटेंस. ठीक है. नेक्स्ट टर्म होता है हेरिडिटी. व्हाट इज हेरिडिटी? हम लोग बहुत बार यूज करते हैं ना, ये इसका हेरिडिटी प्रॉब्लम है ना. तो हेरिडिटी एक्चुअल मतलब क्या होता है? हेरिडिटी मतलब होता है इट्स अ टेंडेंसी ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड देयर पेरेंट्स. मतलब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है जो एग्जैक्टली सेम होता है. ठीक है. अगर वो कैरेक्टर, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर पेरेंट्स के साथ ऑफस्प्रिंग का सेम होता है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स अ हेरिडिटी. मतलब वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को वो कैरेक्टर मिला है. सो इट्स अ टेंडेंसी ऑफ सिमिलरिटी. इट्स अ सिमिलरिटी, ये याद रखना, सिमिलरिटी बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स. ओके. थर्ड वन इज द वेरिएशन. Variation means it is tendency of difference in various traits of individuals of a progeny from one another and their parents. तो वेरिएशन मतलब क्या होता है? देखो हेरिडिटी में क्या था, कुछ कैरेक्टर सेम था. ठीक है. तो वेरिएशन में क्या हो रहा है, जो भी ऑफस्प्रिंग आ रहा है, जो भी न्यू प्रोजेनी आ रहा है, प्रोजेनी के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. दो प्रोजेनी कभी भी 100% सेम नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हो ही सकता है, होता ही है. तो आपस में डिफरेंस या पेरेंट्स के साथ जो डिफरेंसेस होता है इन वेरियस ट्रेट्स, इन वेरियस ट्रेट्स मतलब होता है इन वेरियस कैरेक्टर, तब जाके हम लोग उसे कहते हैं वेरिएशन. फोर्थ वन इज द ऑफस्प्रिंग. व्हाट इज ऑफस्प्रिंग? द ऑर्गेनिजम्स डिराइव्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू से अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑफस्प्रिंग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक टर्म होता है एलिलीज. एलिलीज मतलब होता है द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन लोकेटेड एट द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है. क्या है? द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन लोकेटेड एट द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है. ये समझ में आया होगा. सो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है कि एक जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है. अब वो दो अल्टरनेटिव फॉर्म होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर सेम जगह में होता है. ठीक है. इसे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ना. तो व्हाट इज एलिली? एज वी नो इन एनी ऑर्गेनिज्म देयर इज ए क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए होमोलोगस पेयर. से फॉर एग्जांपल मान लो ह्यूमन बॉडी में कितना क्रोमोसोम होता है? ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम होता है 46. ठीक है. अब ये 46 क्रोमोसोम कैसे होता है? जनरली 23 पेयर में होता है. 23 पेयर में क्रोमोसोम होता है. तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मतलब कैसे? हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. मान लो ये क्रोमोसोम है 1A, एक क्रोमोसोम है 1B, ऐसे करके 2A 2B, ऐसे करते करते फाइनली जाके कितना आ जाएगा? मान लो 23A 23B. ठीक है. सो टोटल मिला के हम लोगों के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज द 46 क्रोमोसोम होता है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या लिखा था? अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन एलीलीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन. अब ये क्रोमोसोम है. ठीक है. ये क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा? ये क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा. ठीक है ना. इस डीएनए के अंदर क्या होगा? जीन होगा. ठीक है ना. अब जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म हमेशा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में रहता है. सो हम लोग कभी भी जब देखेंगे जो 46 क्रोमोसोम एक ह्यूमन सेल के अंदर है, वो सेल के अंदर 23 पेयर मतलब 1A 1B 2A 2B करके टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है. नाउ ईच एंड इंडिविजुअल क्रोमोसोम में बहुत सारा जीन्स होता है. ठीक है. अब जैसे मान लो 1A 1B एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. ये जो दो दिख रहा है ये दो होता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम. होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम. क्यों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? क्योंकि 1A के अंदर जितना जीन है सेम जीन 1B में भी होगा और सेम लोकेशन में भी होगा. ऐसा नहीं होगा कि एक जगह में मान लो यहाँ पे एक जीन है, ये जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म यहाँ पे है. ऐसा कभी भी नहीं होता है. ठीक है. सो क्या होता है? अगर मान लो
1A क्रोमोसोम में ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम में एक जीन है, दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर हाइट। हाइट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक जीन। तो सेम जीन 1B भी सेम जगह में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी सेम जीन प्रेजेंट है, ठीक है ना, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो दो जीन है, दिस जीन्स आर कॉल्ड द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अब ये हो सकता है हाइट इज ए कैरेक्टर, से फॉर एग्जांपल मान लो हाइट के लिए हाइट कैरेक्टर के लिए दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, एक होता है टॉल और एक होता है ड्वार्फ। से फॉर एग्जांपल मान लो 1A में ये जो जीन है, ये जीन टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो 1B में जो जीन है ये ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो टॉल को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और ड्वार्फ को हम लोग स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, जीन तो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर ये पर्टिकुलर पोर्शन में जो जीन है वो टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहां पे जो जीन है वो ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मतलब क्या हो गया, एक ही जीन दो अल्टरनेटिव फॉर्म, और दो अल्टरनेटिव फॉर्म कहां पे है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर है, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर है, और सेम लोकस मतलब सेम जगह में है, सेम जगह के अंदर है, दोनों जगह भी सेम है। तो इसे कहते हैं हम लोग एलीली। सो एलीली मीन इट्स ए अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म आता है होमोजाइगस। व्हाट इज होमोजाइगस? द कंडीशन इन व्हिच क्रोमोसोम कैरी सिमिलर एलीलीज फॉर ए कैरेक्टर, ऑल्सो नोन एज द प्योर लाइन। जैसे अभी हम लोग डिस्कस किया था कि 1A 1B एक क्रोमोसोम है, मान लो ये 1A 1B एक क्रोमोसोम है। हम लोग क्या किया था, तो एक जगह में एक पर्टिकुलर जीन दिया था जिसका टॉल है, और यहाँ पे सेम जीन है। अगर यहाँ पे क्या लिखा था हम लोग, ड्वार्फ लिखा था, स्मॉल टी लिखा था, है ना, जो दोनों की ना हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी मान लो कि जो 1A और 1B दोनों में ही टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, तो दोनों जो एलीली है, ये भी एक एलीली है और ये भी एक एलीली है, एलीली पेयर होता है, तो दोनों एलीली, पर दोनों एलीली सेम ही है, सेम कैरेक्टर को ही वो एक्सप्रेस कर रहा है, टॉलनेस को ही वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो 1A और 1B होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में दोनों ही अगर कैपिटल टी रहेगा, टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तब जाके हम लोग उसे कहेंगे होमोजाइगस। सो इट्स ऑल्सो नोन एज द प्योर लाइन, ठीक है, दोनों ही टॉल होता है। नाउ हेटेरोजाइगस, तो हेटेरोजाइगस में क्या होगा, हेटेरोजाइगस में क्या होगा कि सेम चीज ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक 1A और एक 1B। अब यहाँ पे मान लो सेम लोकेशन में एक जीन है जो कि ना टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सेम लोकेशन में और एक जीन है जो कि ना स्मॉल टी मतलब ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में, अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसा अगर सिचुएशन में रहेगा, तब उसे हम लोग कहेंगे हेटेरोजाइगस। सो हेटेरोजाइगस मींस द कंडीशन इन व्हिच क्रोमोसोम कैरी डिसिमिलर एलीलीज। ठीक है, डिसिमिलर एलीलीज मतलब होता है कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ये हो गया हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट होता है डोमिनेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट होता है डोमिनेंट कैरेक्टर। अब डोमिनेंट क्या होगा, ये बाद में जब हम लोग मेंडल का लॉ डिस्कस करेंगे तो हम लोग को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डोमिनेंट क्या चीज होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर मींस द कैरेक्टर व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, इट इंडिकेट्स विथ कैपिटल हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब यहाँ पे क्या देखा था, हेटेरोजाइगस क्या है हम लोग किया था। तो हेटेरोजाइगस में हम लोग क्या देखा था, हेटेरोजाइगस में क्या होता है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, एक्सप्रेस एट हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब हो गया यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया हेटेरोजाइगस कंडीशन। सो डोमिनेंट मतलब होता है क्या, जो कैपिटल लेटर में लिखा है। तो अब ये दो लेटर में कैपिटल लेटर कौन सा है, ये है कैपिटल लेटर, है ना। सो कैपिटल लेटर जो कैपिटल लेटर होगा वही डोमिनेंट होगा। ठीक है, और जो स्मॉल लेटर होगा वो होगा रिसेसिव। सो ये जो लेटर हम लोग देखते हैं, लेटर देख के हमको पता चल जाता है कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करने वाला है, कौन सा कैरेक्टर करने वाला है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में
जो कैपिटल लेटर में लिखा होगा वो कैरेक्टर ही एक्सप्रेस करेगा। सो यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी स्टैंड फॉर टॉल और स्मॉल टी स्टैंड फॉर ड्वार्फ, ठीक है। तो दो कैरेक्टर जब एक साथ रहेगा तो एक्सप्रेस कौन करेगा, टॉल एक्सप्रेस करेगा, इसलिए हम लोग इसे डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जस्ट इसका सिमिलर एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर। रिसेसिव कैरेक्टर में क्या है, देखो, द कैरेक्टर व्हिच इज सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन इट इज इंडिकेट्स एज अ स्मॉल लेटर। तो देखो यहाँ पे अगर टॉलनेस अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो ये जो स्मॉल टी है ये तो सप्रेस हो रहा है, इसका कैरेक्टर तो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ड्वार्फनेस तो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। सो हेटेरोजाइगस फॉर्म में ये जो स्मॉल टी है, इस स्मॉल टी को हम लोग कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर और ये कैपिटल टी को हम लोग कह रहे हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म होता है फिनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप मींस एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे ये कैरेक्टर का नाम बताया था क्या, हाइट इज अ कैरेक्टर, ठीक है। कोई भी प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ हो सकता है, तो वो कैरेक्टर हम लोग बाहर से देख के बोल सकते हैं कि वो प्लांट का हाइट क्या है। सो ऐसा कैरेक्टर जो कि ना हम लोग एक्सटर्नली और मॉर्फोलॉजिकली विजिबल होता है, जो देख के हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे से अलग है, ऐसा कैरेक्टर को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, फेनोटाइपिक कैरेक्टर या फेनोटाइप। और जियोटाइप क्या है, जियोटाइप मतलब होता है उस पर्टिकुलर फेनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन जो होता है, उस जीन को हम लोग कह रहे हैं जियोटाइप। मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, जीन का अरेंजमेंट कैसा है, वो जब हम लोग डिसाइड करते हैं तब कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो ऑलरेडी हम लोग में डिस्कस कर चुका है, वो है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मींस इंडिविजुअल सेल containing single complete set of chromosome, single complete set of chromosome। जैसे हम लोगों को पता है कि कोई भी जैसे ह्यूमन बॉडी हम लोग मान लो ह्यूमन सेल के अंदर क्या है, एक ह्यूमन सेल है, इस ह्यूमन सेल के अंदर जनरली कितना क्रोमोसोम होता है, 46, ठीक है। ये 46 को हम लोग क्या कहते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, है ना। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है ना। सो अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगल कंप्लीट सेट, सिंगल कंप्लीट सेल। अभी हम लोग क्या डिस्कस किया था, ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैसे रहते हैं, 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। मतलब ऐसे हम लिखा था 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B ऐसे करके रहता है ना। सो ये देखो यहाँ पे दो सेट होगा, ये एक सेट है और ये एक सेट है, ठीक है ना। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब ये जो सिंगल सेट दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल सेट या राइट हैंड साइड का ये जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम दिख रहा है, तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्या हो जाएगा, एक सेल जिस सेल के अंदर ओनली 23 क्रोमोसोम रहेगा, ओनली 23 क्रोमोसोम रहेगा, क्योंकि 46 तो एक्चुअल नंबर है, ठीक है, जो कि ना 23 पेयर में रहता है। अभी अगर कोई सेल के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम आ रहा है तो उस सेल को हम लोग कह रहेंगे हैप्लॉइड सेल। और ये याद रखना, ये जो नंबर हम लोग लिख रहे हैं सिर्फ ह्यूमन के लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल चेंज हो जाएगा तो उसका क्रोमोसोम नंबर भी चेंज होता है, ठीक है। इसीलिए हैप्लॉइड का डेफिनेशन में हम लोग 23 नंबर को यूज नहीं कर सकते। ये जस्ट समझाने के लिए तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि ह्यूमन एक सेल को हम लोग लेके तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है, ठीक है। तो हैप्लॉइड का डेफिनेशन में ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा सिंगल कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट होता है व्हाट इज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब एन इंडिविजुअल और सेल containing a complete set of chromosome। complete set of chromosome मतलब क्या है, ये दोनों को सेट को एक साथ ले लो तब जाके कंप्लीट हो जाएगा। सो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब डिप्लॉइड। सो डिप्लॉइड क्या होगा, जब 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक साथ रहेगा, है ना, उसी ह्यूमन सेल को हम लोग बोल सकते हैं डिप्लॉइड सेल। पर दूसरा ऑर्गेनिज्म के लिए दूसरा क्रोमोसोम नंबर होगा, उसका दूसरा स्टडी होगा। पर हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम और डिप्लॉइड मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये होता है डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म होता है व्हाट इज ट्रेट। ट्रेट मतलब क्या होता है, ट्रेट मतलब फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इनहेरिटेड कैरेक्टर। फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर। इनहेरिटेड मतलब हम लोग पढ़ चुका है कि इनहेरिटेशन क्या है,
कि जो पेरेंट से जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होके प्रोजेनी में आ रहा है, पेरेंट से प्रोजेनी में जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है वो कैरेक्टर अगर मॉर्फोलॉजिकली विजिबल है तब उसे हम लोग कहेंगे ट्रेट। मॉर्फोलॉजिकली विजिबल होना पड़ेगा, क्योंकि फिनोटाइपिक मतलब मॉर्फोलॉजिकली और एक्सटर्नली अभी हम लोग डिस्कस किया, ठीक है। सो ये फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इनहेरिटेड कैरेक्टर इज कॉल्ड द ट्रेट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द वाइल्ड टाइप। व्हाट इज वाइल्ड टाइप? द स्पीशीज वैरायटी शोइंग द नॉर्मल फिनोटाइप, ठीक है। नॉर्मल फिनोटाइप मतलब होता है इन जनरली नेचर में जो नॉर्मली हम लोगों को मिलता है, जिसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आया है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को हम लोग वाइल्ड टाइप या वाइल्ड वैरायटी बोलते हैं, जिसके अंदर फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कोई वैरायटी शो नहीं कर रहे हैं। द स्पीसीज वैरायटी शोइंग द नॉर्मल फिनोटाइप, नॉर्मल है, कोई चेंजेस इसमें अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, तभी उसे हम लोग कहेंगे वाइल्ड टाइप। एंड द लास्ट वन इज द क्लोन। व्हाट इज क्लोन? द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड बाय asexual reproduction, a group of organisms produced through the asexual reproduction। asexual reproduction के थ्रू से जो भी बनता है, जो भी प्रोजेनी आता है, वो जनरली क्लोन होता है। हम लोग लास्ट चैप्टर्स में, मतलब चैप्टर 8 में रिप्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जितना प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है और द क्लोन, मतलब जो पेरेंट है और जो प्रोजेनी है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, ठीक है। सो दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू वन अनदर और एज वेल एज देयर पेरेंट्स, तब जगह होता है क्लोन। मतलब एक पर्टिकुलर पेरेंट्स, ठीक है, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद मान लो एक पेरेंट्स है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद ये ऐसा 4 प्रोजेनी बनाया, ठीक है, ये 4 प्रोजेनी बनाया, ठीक है ना। तो ये 4 प्रोजेनी में क्या होगा, ये 4 प्रोजेनी को हम लोग एक दूसरे के साथ सिमिलर होगा तो क्लोन होगा, या कोई भी एक प्रोजेनी अपना पेरेंट के साथ भी सेम हो सकेगा, मतलब जो सिमिलर टू वन अनदर और एज वेल एज देयर पेरेंट्स, तब जाके हम लोग उसे क्लोन कहेंगे। मतलब क्लोन इज अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, तब जाके उसे हम लोग कह सकते हैं क्लोन, ठीक है। सो ये हो गया कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि ना ये चैप्टर को पढ़ने के टाइम बहुत ज्यादा यूज, इसीलिए ये कुछ टर्म को हम लोग को पढ़ लेना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर दिया, तुम लोग डेफिनेशन को भी अपना कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को समझने के लिए कि जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी क्या है, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ठीक है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या है, जीनोटाइपिक कैरेक्टर क्या है, मेंडल्स का जो लॉ हम लोग अभी पढ़ने जाएगा उसमें ये बहुत ज्यादा यूजेस होगा, ठीक है। ओके, देन थैंक यू।